Good morning, guys. So, we have solved the exercise 11.2 till question number 5. So, today we are going to solve the question number 6. The question number 6 is find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. मीन्स यहाँ पर एक ए रोम्बस है जिसकी साइड्स कितनी है 5 और उसका एल्टीट्यूड दिया है 4.8. वन डायगनल इज गिवन दैट इज 8 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगनल. ओके, so here I have draw a rough figure of this rhombus. ABCD is a rhombus having the sides 5 centimeter. I have mentioned only one side over here. DC is 5, AB is 5, CB is 5 and DA or AD is 5. Means all the sides are equal. So first here if we draw this diagonal, so you can clearly see that this rhombus is divided into two parts. The first one is a triangle, and the another one is also a triangle. Now we find the area of the triangle A, B and D. The area of the triangle is half base into height. Here base is AB, that is 5 centimeter, and height is the altitude given 4.8. So now after solving we get 5 multiplied by 2.4, 12. Now the area of rhombus. In the area of rhombus there are two triangles, so we will multiply this area by 2 to get the area of the rhombus. So 12 multiplied by 2, it is 24 centimeter square. Now area is equal of rhombus is equal to half d1 into d2. Now area is 24, so I have mentioned here 24. Half d1, one diagonal is given, that is 8, and another diagonal is d2, that is we have to calculate. Now 2 ones are 2, 2 fours are 8 here. Now the 24 divided by 4, 4 6 are 24, so 6 centimeter is equal to d2. So d2 is your 6 centimeter. So this is the solution of the question number 6. I hope you all understand. Now coming to the question number 7. The question number 7, the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4. इन दिस क्वेश्चन 3000 टाइल्स हैं जो एक रोम्बस शेप्ड के फ्लोर पे लगे हुए हैं और उन टाइल्स में जो डायगनल्स गिवन है वो 45 और 30 सेंटीमीटर की हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट में उस फ्लोर में टाइल्स लग जाएंगे. सो नाउ number of the tiles used for floor given 3000 tiles. Diagonals of a tile क्या d1 45 centimeter and d2 30 centimeter. अर्लियर एज आई हैव डिस्कस दैट किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ टाइल्स लाना होगा तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. तो नंबर ऑफ टाइल्स इज गिवन 3000. एरिया ऑफ द फ्लोर वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि जब तक एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक उसकी कॉस्ट कैसे आएगी. नाउ half d1 into d2, that is the area of the one tile because the tiles are in rhombus shape. Area of the floor upon half d1 is 45 and d2 is 30. After cancelling out here 2 ones are 2 and 15 times में आ जाए 45. now area of the floor इधर 3000 था, 3000 on other side multiplied by 15 into 45. तो area of the floor after multiplying you will get this. Now this all in centimeter and the price is given in per meter square. So we will convert it into meter. 1 centimeter is equal to 1 meter. 100 centimeter is equal to 1 meter. 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meter. Same 1 centimeter square is equal to 1 upon 10,000 meter square. So after dividing this we will get 202.5 meter square. ये आ गया area of the floor. Now cost of polishing, area multiplied by the cost.
4 into 202.5. After multiplication, you will get 810. So the cost of polishing the floor will be 810. Now question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. Here it is the diagram given. This is the road and this is the river. Clear? अब ये है trapezium shaped field. The height is given, that is 100 meter. Parallel sides are this one and this one, and it is given that the parallel side on the road toward जो road की side parallel side है वो, और जो river की side है parallel side वो, तो road की side का twice है, मतलब जो river की side जो आ रही है आपकी ये length, ये इसकी twice है, मतलब ये double है, और ये figure में भी clear mention है. So as this is the diagram I've made. So the given perpendicular distance between two parallel sides, ये parallel sides हैं तो perpendicular distance जो है 100 मीटर है. We will consider this h. Let the side along the road, जो ये side है इसको अगर हम a consider कर लें, ये a मीटर है, तो ये वाली side जो river के side है वो हमारी हो जाएगी 2a, क्योंकि ये given है कि ये side जो है ये वाली river की side, road की side की twice है. अब we know area of the trapezium field is half a plus b means sum of parallel sides into height. तो area of trapezium क्या हो जाएगा 1/2. a is along the road, b जो हो जाएगा वो हमारी ये वाली हो जाएगी, यही तो है दोनों parallel sides, तो a plus 2a multiplied by 100. और जो पहले से ही हमें दिया गया है कि जो एरिया ट्रेपेजियम फील्ड का है वो 10,500 है. नाउ आफ्टर कैंसिलिंग आउट ये 3a मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 10,500. ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आ जाएंगे डिवीजन में. जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर. अब हमें ये इस साइड की आ गई 70 मीटर, तो ये वाली जो साइड है वो कैसे आएगी, वो ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 70 इंटू 2 इज इक्वल टू 140 मीटर. सो द लेंथ ऑफ द साइड along the river is 140 मीटर. हमें यही पूछी गई थी कि ये जो लेंथ इतनी है, तो हमें ये आ गई 140 मीटर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. The top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. This is the figure of this question number 9. ये है हमारी octagonal shape. यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या बन रहा है, इस फिगर को हम डिवाइड करेंगे. अब हमने क्या किया है, इस फिगर को डिवाइड किया है ऑक्टागोनल शेप को. ये हाइट दी है जो कि 4 सेंटीमीटर दी है, और जो बेस है वो 11 मीटर गिवन है. ठीक है, तो हमने पहले इसको डिवाइड किया. ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये एक ट्रेपेजियम. मतलब ABCH इज ए ट्रेपेजियम, HCDG is a rectangle, GFED is a trapezium. So to find out the area of this octagonal, we will find the area of these two trapezium and one this rectangle. So given the shape is regular octagon, regular means क्या होता है कि all the sides are of equal measure. तो area of the octagon हो जाएगा area of trapezium ABCH plus area of the rectangle CHGD plus area of the trapezium GDEF. That is written. Area of the trapezium में half base into sum of parallel sides. So this 5 and 11 are parallel sides. 5 plus 11 और ये हो गई height multiplied by 4 plus 11 into 5 कैसे, length into breadth 11 into 5 plus same half into parallel sides, this is 5 and this is 11. क्यों 11, ये 5 है तो all sides equal है तो ये भी 5 होगी. ये अगर 11 है तो रेक्टेंगल में 2 पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो ये भी GD भी 11 होगी.
11 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच भी यहाँ पर भी 4 गिवन है। नाउ हाफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 11 5 जा 55, हाफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेम ये भी आ जाएगा। 32 55 को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 119। सो द एरिया ऑफ द ऑक्टागन इज 119। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, we have to find, this is a pentagonal shaped park and one another ज्योतिष डायग्राम एंड कविताज डायग्राम। यहाँ पर दो गर्ल्स हैं जिन ज्योति ने इस डायग्राम को इस तरीके से डिवाइड किया और कविता ने इस तरीके से। तो ज्योति के डायग्राम में 2 ट्रोपीजियम बन रहे हैं। ये देखिए ये पैरेलल साइड है इसके और ये साइड इसके पैरेलल है, तो दोनों जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो दो और ज्वाइन कर दें तो ज्योति के डायग्राम का आ जाएगा। अब अगर हमें कविता का लाना है तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक, तो हमें इनका लाना है तो हम दोनों का ही फाइंड आउट करते हैं। अब ज्योति के डायग्राम में देखिए, ज्योति के डायग्राम में क्या है, ट्रेपेजियम बन रहा है तो हमारा हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही हमने लिखा है हाँ, और इधर का भी हमें लिखना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये साइड कितनी है, ये साइड 15 है तो ये भी साइड 15 होगी, ठीक, ये साइड 15। अब ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की 30 है तो ये वाली हाइट भी 30 होगी, तो जो मिडिल का पोर्शन है वो भी 30 है, तो ये सम पैरेलल साइड्स हमें मिल गई 15 और 30। अब हाइट कहाँ से आएगी, हाइट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, अब ये जो यहाँ से यहाँ पे यही तो हाइट है इसकी। अब देखो टोटल 15 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 7.5, तो इसीलिए हमने यहाँ हाइट की जगह 7.5 लिया है। तो हाफ 15 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। सेम इधर का भी एरिया होगा तो हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। अब क्या है, ये दोनों सेम है तो हमने एक बार एरिया, या तो मैंने शो कर दिया था कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये दोनों एरिया ऐसे निकालेंगे, लेकिन अब हमें पता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो हमने सिर्फ एक पार्ट को लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, 15 प्लस 30 45 इंटू 7.5 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम दिस इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। Now we will calculate according to Kavita's diagram. Now Kavita's diagram में this is a square, यहाँ पे क्या है सारी साइड, ये भी 15 ये भी 15 ये भी 15 ये भी 15 है तो all the sides are 15, क्लियर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर 30 है तो जो ये हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो जाए, अगर ये पूरी 30 है तो यहाँ से यहाँ तक की 15 हो जाएगी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा ये वाली साइड, तो ये 15 गिवन है तो ये 15 हो जाएगी। इसका 30 का जो हाफ होगा यहाँ तक पूरा 30, यहाँ तक 15 है तो ये वाली हाइट 15 होगी, ठीक। तो सेम हमने यही लिया है कि कवितास डायग्राम की एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट प्लस साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ द स्क्वायर हाफ, बेस हमारा 15 था, हाइट भी 15 है, मल्टीप्लाई कर दिया, साइड इंटू साइड 15 इंटू, अब ये 225 डिवाइडेड बाई 2 आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 337.5 मीटर स्क्वायर। कविता और ज्योति दोनों के डायग्राम का हमारा एरिया कैलकुलेट किया अलग अलग तरीके से, लेकिन एरिया जो आया है वो सेम ही आएगा, क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, लेकर डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन, आउटर मतलब ये बाहर 24 इंटू 28 एंड द इनर डायमेंशन 16 इंटू 20। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच सेक्शन इन द फ्रेम। सेक्शन ये बनी 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन, इन सेक्शंस का हमें एरिया लाना है और इनकी विद जो है वो ईच, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये विद होती है, ये विद जो है वो सेम है, सबकी सेम है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ इसको रफ फिगर बना लिया है। आउटर की डायमेंशन 24 इंटू 28 दी थी, ठीक है, और इनर की 16 इंटू 20। अब देखो ये पूरी कितनी थी 28, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 20 थी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम 28 में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें 28 माइनस 20 तो हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिल जाएगा, 8 मिला। अब हाफ ये कह रहा है कि जो सेक्शंस है
ये इक्वल है, सेम है। तो अगर 8 मिला तो हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर, मतलब 4 इधर और 4 इधर, तो ये सेक्शन 4 हो जाएंगे, ये सेक्शन 4 हो जाएंगे। सेम अगर हम इस साइड से करें, ये 24 है, ये 16 है, तो ये एरिया हमारा क्या आ जाएगा 16, इतना एरिया तो हमारा 16 ही है। तो 24 माइनस 16 करेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। क्लियर। तो ये जो सारे से ये डिस्टेंस है ये 4 4 की आ गई। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म लाना है, जिसे हम ए बी ई एफ, सेक्शंस तो यही है ना 1 2 3 एंड 4, तो हमें ए बी ई एफ का अगर हम एरिया ला रहे हैं तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे, एक ये और एक ये 24 है तो ये भी 24 है, तो 24 प्लस ये सेम है 16, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। 16 प्लस 24, हाइट 4 ही आई है, तो हाफ 2 2 जा 4, 16 प्लस 24 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया जो आया वो 80 सेंटीमीटर आया। तो सामने का भी एरिया क्या आ जाएगा, उतना ही आएगा 80 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम ऑफ बी ई एच सी कहाँ है हमारा, बी ई एच और सी, इसमें हमारा पैरेलल साइड्स 20 और 28 है, हाइट हमारी 4 है, सेम 28 प्लस 20 इंटू 4, तो हमने कैलकुलेट कर लिया तो 96 आ गया। इधर का अगर 96 है तो ये भी 96 ही होगा, लेकिन फिर भी वी हैव कैलकुलेटेड, so you can clearly see. So the area of each section we have calculated. Area of this section will be equal to this section because this is a rectangle, and this section will be equal to this section, but we have calculated all the parts over here. In this way I have finished this exercise. If you like, kindly share and subscribe for more. Thank you. Have a nice day.